بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سانحہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ بانی پی ٹی آئی کی 12 اور شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی 12 اور شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اور شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی 12 اور شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اور شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی 12 اور شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کے انتخابات کے کامیاب انعقاد پر نگران حکومت الیکشن کمیشن اور قوم کو مبارکباد۔ سپہ سالار نے الیکشن جیتنے والے امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو بھی مبارکباد دی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ عوام نے اپنے حق رائے دہی میں آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت کی ہے۔ پاکستانی عوام نے آئین پاکستان پر مشترکہ اعتماد کا اظہار کیا۔ انتخابات اور جمہوریت عوامی خدمت کا ذریعہ ہیں۔ الیکشن عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے، انتشار ملک کے لیے موضوع نہیں۔ سیاسی قیادت کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر خدمت کی کوششیں کرنی چاہیے، یہی جمہوریت کو فعال بنانے کا واحد راستہ ہے۔ تمام جماعتیں سیاسی پختگی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے۔ آرمی چیف نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ الیکشن ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لائیں، ملک میں امن اور خوشحالی کا مرکز بنے۔ آرمی چیف کی انتخابات کے کامیاب انعقاد پر نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور قوم کو مبارکباد۔ سپہ سالار نے الیکشن جیتنے والے امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو بھی مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ عوام نے اپنے حق رائے دہی میں آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت کی۔ پاکستانی عوام نے آئین پاکستان پر مشترکہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انتخابات اور جمہوریت عوامی خدمت کا ذریعہ ہے، الیکشن عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے۔ انتشار ملک کے لیے موضوع نہیں، سیاسی قیادت کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر خدمت کی کوشش کرنی چاہیے۔ قومی اسمبلی کے 250 حلقوں کے نتائج الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے 15 حلقوں کے نتائج ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ قومی اسمبلی میں آزاد اراکین نے 99 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 71 نشستیں حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 53، ایم کیو ایم نے 17 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ کاف 3، استحکام پاکستان پارٹی 2 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ جے یو آئی 2، بی این پی، مسلم لیگ ضیاء، ایم ڈبلیو ایم ایک نشست پر کامیاب ہوئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بابر شہزاد الیکشن کمیشن میں موجود ہیں۔ بابر، کیا تفصیلات ہیں؟ انتخابات 2024 ہیں، ان کے اکثر و بیشتر جو رزلٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکے ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی کی 250 نشستیں جو ہیں ان کے جو رزلٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکے ہیں۔ 15 جو نشستیں ہیں ان کے رزلٹس کا اب تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو انتظار ہے۔ اگر پارٹی پوزیشن کی بات کی جائے، سیٹ پوزیشن کی بات کی جائے قومی اسمبلی میں، تو سب سے زیادہ 99 نشستیں حاصل کی ہیں آزاد امیدواروں نے، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے 71 امیدواروں کے ساتھ، 71 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ بن کر ابھری ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے 53 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ایم کیو ایم نے 17 اور جو کاف لیگ ہے پاکستان مسلم لیگ کی نام سے جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، اس نے 3 نشستیں حاصل کی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی جو ایک نئی پارٹی ہے اس نے بھی 2 نشستیں حاصل کر لی ہیں قومی اسمبلی میں۔ جے یو آئی نے 2، ایم ڈبلیو ایم نے 1، بی این پی نے 1 اور مسلم لیگ ضیاء جو ہیں جس کے سربراہ
सबक सदर ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक है, उसने भी एक नशिस्त हासिल की है। अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो सिंध असम्बली के जो तमाम हल्के हैं उनके नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के भी तमाम हल्कों के नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। अगर बात की जाए पंजाब असम्बली की तो 295 जो नशिस्तें हैं वो उनके नताइज 295 हल्कों के नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। सिर्फ एक नशिस्त जो पंजाब असम्बली की है वो बाकी है, जिसके रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी जो है वो मौसूल होना है। नून लीग की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरी है नून लीग पंजाब असम्बली में। 130 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में हासिल की हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं 127 पंजाब असम्बली में, 127 आज़ाद उम्मीदवारों ने नशिस्तें हासिल की हैं पंजाब असम्बली में। पीपल्स पार्टी ने 10, काफ लीग ने 8, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने 1, तहरीक लब्बैक ने भी एक नशिस्त हासिल कर ली है सूबाई असम्बली जो पंजाब की है उसमें, और मुस्लिम लीग ज़िया ने यहाँ पंजाब असम्बली में भी एक नशिस्त हासिल की है। सिंध असम्बली की अगर बात की जाए तो तमाम जो 130 नशिस्तें हैं सिंध असम्बली की उनके नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। जो पीपल्स पार्टी है उसने 84 नशिस्तें हासिल की हैं सिंध असम्बली में, और सबसे बड़ी जो सिंध असम्बली की जमात है वो बनकर उभरी है पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरी जमात है। इसके अलावा आज़ाद जो 14 उम्मीदवार हैं जिनमें अक्सर व बेशतर PTI की हमायत याफ्ता हैं, उन्होंने सिंध असम्बली में जो है वो कामयाबी हासिल की है। जमात इस्लामी और GDA ने भी 2 नशिस्तें जो हैं सिंध असम्बली में हासिल की हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात की जाए तो 113 जो नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, उन तमाम के नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं 91 उन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अक्सर व बेशतर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इन्हें जो PTI की हमायत याफ्ता हैं PTI की जानिब से इनको नामजद किया गया था। JUI ने 7 नशिस्तें हासिल कर ली हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। नून लीग 5 नशिस्तें ही हासिल कर सकी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। जमात इस्लामी ने 3 हासिल की हैं। PTI जो पार्लियामेंटेरियन है परवेज़ खटक जिसके सरबराह थे उसने नशिस्तें 2 हासिल की हैं, और ANP जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की जो 48 नशिस्तें हैं उनके नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। 3 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं बलूचिस्तान की उनके जो नताइज हैं उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी भी इंतज़ार है। JUI ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं बलूचिस्तान असम्बली में, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं। नून लीग ने 9, ANP ने 2, BAP ने 4, BNP ने 1, जमात इस्लामी ने 1, और जो BNP अवामी है उसने भी एक नशिस्त हासिल की है। हक 2 तहरीक जो है उसने भी एक नशिस्त हासिल की है। जी अब तक के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नताइज मौसूल हुए हैं उनकी तफसीलात थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद अपडेट करें। फाफा ने इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। सियासी जमातों का इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका खुशाइंद करार दे दिया। मुल्क में बेयकीनी का दौर ख़त्म हो गया। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। फाफिन ने इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। सियासी जमातों का इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका खुशाइंद करार। मुल्क में बेयकीनी का दौर ख़त्म हो गया। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कराची से कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का हुकूमत साजी से कबल मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जल्द मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी जल्द MQM वफ़द के हमरा इस्लामाबाद जाएंगे। महमूद खान अचकजई का इंतखाबी नताइज के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। पार्लियामेंट में जाने से भी इनकार कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी की कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 जीती हुई नशिस्तों का नतीजा तब्दील किया गया। धमकी भी दी कि कल दोपहर 12 बजे तक असल नताइज जारी न हुए तो तहरीक चलाएंगे। महमूद खान अचकजई का इंतखाबी नताइज के लिए तहरीक चलाने का ऐलान।
बात करें आम इंतखाबात की तो आपको बताएं कि NA-47 के इंतखाबी नताइज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन ने दरख्वास्त दायर कर दी है। NA-47 के इंतखाबी नताइज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन ने दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको बता रहे हैं NA-47 के इंतखाबी नताइज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात पर बड़ी तादाद में वोट डालना खुशाइंद करार। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम को हक़ राय इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। पाकिस्तान में ख़ातीन और अक़लियतों का बड़ी तादाद में वोट डालना खुशाइंद है। कसीर तादाद में वोट डालना जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। तमाम मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी अमल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। वज़ीर आला ने डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अमले को मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डाटा सेंटर का भी दौरा किया। MD पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी SN यूनुस ने मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने NA-71 सियालकोट के नताइज चैलेंज कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातिह करार दिया। हमारे पास फॉर्म 45 के नताइज मौजूद हैं। रेहाना डार ने अदालत से इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा रोकने का हुक्म देने की सदा की है। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने NA-71 सियालकोट के नताइज चैलेंज कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।